عمران خان کا الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، چیف الیکشن کمشنر پر جانبداری کا الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر پسند ناپسند پر فیصلے کرتے ہیں۔ لندن میں بیٹھے شخص نے سازش کی، یہاں اس شخص کے بھائی اور زرداری بھی ملوث تھے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے پھر مداخلت کی تصدیق کر دی۔ سپریم کورٹ فیصلے کی کھلی سماعت کرے۔ ملکی خود مختاری اور جمہوریت کے بچاؤ کے لیے سپریم کورٹ اور دیگر ادارے کھڑے ہو جائیں۔ شہباز شریف نے کہا تھا سازش ثابت ہوئی تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ شہباز شریف میرے پاس نہ آنا، میں چوروں سے نہیں ملتا، کم سے کم مجھ سے معافی تو مانگو۔ کارکنوں کو اسلام آباد مارچ کی تیاری کرنے کی ہدایت، 27 رمضان کو شب دعا منانے کا اعلان۔ عمران خان کا سازش کا بیانیہ دفن ہو چکا۔ قومی سلامتی کمیٹی میں یہ بات سامنے آ چکی کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں جب تک اتحادی ساتھ تھے سازش نہیں تھی، جب پتہ چلا اتحادی جا رہے ہیں تو سازش یاد آ گئی۔ مراسلہ آنے کے بعد 27 مارچ تک کیوں خاموش رہے؟ مراسلے میں لکھا ہے کہ امریکی سفیر کو ڈی مارچ کریں، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ جب حکومت میں تھے تب الیکشن کا مطالبہ کیوں نہ کیا؟ عمران خان جھوٹا، چور اور منافق شخص ہے۔ عمران خان مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ عوام کو بے وقوف بنانا بند کریں، آپ کو توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کا حساب دینا ہوگا۔ جماعت اسلامی نے بھی مراسلے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے ٹویٹ میں کہا کہ سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن بننے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور لوگوں کو اعتماد ہوگا۔ لندن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مسلسل تیسرے روز 3 ملاقاتیں۔ نواز شریف اور بلاول کا ادھورے میثاق جمہوریت کو مکمل کرنے پر اتفاق۔ اعلامیے میں کہا گیا ملک کی تعمیر نو کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان ملک کو نیچے لے کر گئے، خوفناک غلطیاں اور خارجہ پالیسی پر خود ساختہ تجارت کی گئی۔ گورنر پنجاب کا عہدہ پیپلز پارٹی کو دینے پر نون لیگ کے تحفظات برقرار۔ اسحاق ڈار کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں قمر زمان کائرہ نے کہا بلاول بھٹو 1-2 روز میں وزیر خارجہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے۔ بلاول پاکستان روانہ ہو چکے ہیں۔ حمزہ شہباز آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف نہ اٹھا سکے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ خرابی صحت کے باعث اسپتال منتقل۔ گورنر ہاؤس کے سبزہ زار میں انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ گورنر ہاؤس کے سبزہ زار میں شامیانے لگا کر 600 مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ نون لیگ کا عدالتی حکم کے باوجود وزیر اعلیٰ کا حلف نہ لینے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ عطا تارڑ کہتے ہیں گورنر پنجاب نے آئین شکنی کی ہے، پیر کو توہین عدالت کی درخواست دی جائے گی۔ گورنر کی پٹیشن میں انتظامی امور کی خلاف ورزی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو کام سے روک دیا گیا۔ محکمہ قانون اور پارلیمانی امور نے مراسلہ جاری کر دیا۔ احمد اویس کسی عدالت میں پنجاب حکومت کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔ مراسلے کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی نمائندگی ہے۔ صوبائی حکومت کی عدم موجودگی میں ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ کیا چیئرمین سینٹ بھی چند روز کے مہمان ہیں؟ صادق سنجرانی کی جماعت باپ کے سربراہ جام کمال نے اشارہ دے دیا۔ ABI نیوز کو خصوصی انٹرویو میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا موجودہ حکومت کے لیے شاید سنجرانی قابل قبول نہ ہو، ان کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ باپ نے عمران حکومت کا ساتھ کیوں چھوڑا، جام کمال نے یہ بھی بتا دیا۔ کہا جب پارٹی بحران میں تھی سابق حکومت نے مدد نہیں کی، ان کی وجہ سے میری بیٹھی بٹھائی حکومت چلی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ 17 سیاسی جماعتوں کے خلاف کیسز کا فیصلہ 1 ماہ میں کرنے کی استدعا۔ موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن دیگر سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی سے انکاری ہے۔ PTI کے خلاف کارروائی میں جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کو تمام سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی چھان بین کا حکم دیا جائے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुजदार कुचला कौमी शाहराह के सेक्शन 1 और 2 का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं बलूचिस्तान में बुनियादी सहूलतें नहीं, सूबा तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। सुई से मुल्क को गैस मिल रही है लेकिन यहाँ रहने वालों को फायदा नहीं। रेकोडिक मामले पर अरबों रुपए और कई साल जाया हुए। क्या हम माजी की तरफ देखते रहेंगे या आगे बढ़ेंगे? लापता अफराद के मामले पर आवाज़ उठाएंगे। ये शहबाज शरीफ या नून लीग की हुकूमत नहीं, इत्तेहादियों की हुकूमत है। रहनुमाओं के दिल में खुलूस है, हम मिलकर तारीख रकम कर सकते हैं। कोयटा कराची शाहराह का 2 माह पहले कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुका। मुराद सईद सेनेट में मंसूबे के इफ्तिताह का ऐलान भी कर चुके। असद उमर का ट्वीट, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत कोई काम खुद भी करेगी या हमारे दौर के मंसूबों का ही इफ्तिताह करेगी। कासिम सूरी बोले, इमरान खान ने बलूचिस्तान के लिए तारीखी मंसूबे शुरू किए। इम्पोर्टेड हुकूमत बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को ख़त्म या उनकी रफ्तार सुस्त करेगी। अमरीका का पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के एलामिये का खैर मकदम। महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जेलेना पोर्टर कहती हैं, पहले ही कह रहे थे कि अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान से देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। हमेशा मुस्तहकम, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अहम समझते हैं। आवाम के लिए खतरे की घंटी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने फ्यूल सब्सिडी ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। कहा IMF इजलास में सब्सिडी ख़त्म करने पर रजामंदी जाहिर की है। प्रोग्राम डीरेल हो चुका था, उसे ट्रैक पर वापस लाएंगे। हुकूमत का मकसद माशी और मालियाती इस्तेहकाम लाना है। बरामदात में इजाफे के लिए मरहलावार इक़दामात किए जाएंगे। हमने आवाम को पेट्रोलियम और बिजली कीमतों में रिलीफ दिया। मौजूदा हुकूमत IMF के इसरार पर रिलीफ वापस ले रही है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, कभी IMF से गैर ज़रूरी दबाव नहीं लिया। हम्माद अज़हर बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम की गई शराइत की तफसीलात सामने लाए। कौम को बताए कि माशी, सियासी और खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक क्या शराइत तस्लीम की। अपने इक़्तिदार पर मुसल्लत होने के बदले में किन चीज़ों पर सौदा हुआ। मुज़म्मिल असलम कहते हैं, इत्तलात है कि IMF प्रोग्राम ख़त्म करके नया प्रोग्राम तरतीब दिया जा सकता है। मुल्क भर में बिजली का बहरान, रोजेदार गर्मी में परेशान। सहरो इफ्तार में बिजली गायब होने से मामूल के काम अंजाम देना भी मुहाल हो गया। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में 5 से 16 घंटों तक की लोड शेडिंग। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। आवाम का वफाकी हुकूमत और नेपरा से बिजली लोड शेडिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात और मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी का फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए कानून साजी पर इत्तेफाक। पैमरा कानून में फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए शिक शामिल की जाएगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जो सच बोलता है और चोरी पकड़ता है, इमरान खान उसे गद्दार बना देते हैं। झूठ पर मबनी इंतशारी बयानिए के तदारुक में मीडिया अपना किरदार अदा करे। नई हुकूमत की महंगाई खत्म करने के दावे धरे रह गए। ईद से पहले मुल्क भर में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त 400 से 450 रुपए किलो में फरोख्त। दुकानदारों का जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार। कहते हैं, बाजार में इंतजामिया नाम की कोई चीज नजर ही नहीं आती। बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके देवगर में सरहद पार से दहशत गर्दों की फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशत गर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचने की मुसद्दिका इत्तलात। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद। पाकिस्तान की अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने की शदीद मजम्मत। अफगान हुकूमत से दहशत गर्दों की सरगर्मियाँ रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शहीद जवानों के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, ऐसे वाक़यात नाकाबिले कबूल हैं, फौरी रोकथाम की ज़रूरत है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में CTD का एक्शन। 7 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। CTD ज़राए के मुताबिक तमाम गिरफ्तार मुल्ज़िमान का ताल्लुक कालादम तंजीमों से है।
पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा स्वाति कत्ल केस। अमरीकी FBI टीम ने वजीहा स्वाति के मोबाइल फ़ोन अदालत में जमा करवा दिए। मकतूला के मोबाइल फ़ोन्स और DNA टेस्ट की रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। आइंदा समाअत 29 अप्रैल को होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम शहादत पर मुल्क भर में जुलूस और मजालिस। लाहौर में मुबारक हवेली और कराची में निश्तर पार्क से जुलूस बरामद हुए। कोयटा में जुलूसों की सिक्योरिटी सख्त, मोबाइल सर्विस बंद, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। उम्र कुछ भी हो, बालिग होने पर लड़की अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है। इकबा केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। लिखा, लवाहिकीन के मुताबिक लड़की की उम्र 14.5 साल है। लड़की बालिग हो जाए तो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग मुतारिफ करवा दी। कमरा नंबर 1 की कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग से लेस कर दिया गया। फरीकैन से मुशावरत के बाद आम लोगों के लिए इसे काबिल रसाई बनाया जा सकता है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड का खूबसूरत इक़दाम। होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में इफ्तार डिनर की तकरीब, आला शख्सियात की शिरकत। लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में अज़ान मगरिब ने मेहमानों के दिल छू लिए। और छोटी ईद की बड़ी खुशियों के लिए बाजार सज गए। कहीं खरीदारों का रश, कहीं महंगाई के बायस ठंड प्रोग्राम। खवातीन को मैचिंग की फिक्र, नन्हे मुन्नों की अपनी फरमाइशें। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।